So let us start with the problem. And before that, am I audible and the screen is visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So continuing our discussion with the topic on equilibrium. So again, you have one question in front of you, as we already have. So the question says that straight vertical mast 4 meter long. Actually, this is not mast. This is mast. Mast means a ये vertical स्वागत member. है नमस्ते हम लोग हर बार स्वागत करते हैं A straight vertical mast. Mast means a vertical member. So this AB, you can see in the diagram, this AB is nothing but a mast. Okay, is 4 meter long. So the entire length of the mast is given as 4 meter, and self weight is 1200 Newton. Okay, self weight is given to you. Is pinned to the ground. What do you mean by pin? Can you refer the diagram and say what do you mean by pin? Yes, sir. रखे Correct. सपोर्ट So मतलब एक here पॉइंट you can फिक्स है see, here you can see at point A, you can see which symbol. ये कौन सा symbol है? hinge का It's a symbol of a hinge. It's a symbol of hinge. That means if it is pinned or hinged, both means the same. अगर अभी आपको क्वेश्चन में कभी दिखा hinge वर्ड की जगह पे pinned वर्ड दिखा तो समझ जाना वो hinge ही है. Okay. To the ground by means of a cable at a distance of 3 meter from the bottom as shown in the figure. Okay, so already everything is given in the figure. A horizontal force of 5 kilonewton acts at the top. Determine the tension in the string and reaction at the hinge support. Okay, so before doing anything, what is our first step? Free body diagram. जो Yeah, भी first step will be to draw the फ्लैट free फोर्स body diagram. Okay, so I will draw a body here. Oh, sorry, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई. Okay, so I will make it a bit clear one. Okay, so this is this body A B. Okay, now first what we show in the free body diagram? Sir, the applied normal forces. So I can see that there is one force which is applied at point B. So 5 kilonewton I am showing you that is it, as it is. And what is the other force which I can show as a applied force? tension Yes. from Tension in a cable or a rope. We Cable already and a told that a cable Yes. is a applied force, a type of applied force. So I will tell that this at point C, and it should be always away from the body and along the rope. So can I show the force like this? Let us say F Yes, sir. D. किसी को डाउट है? No sir. No, So applied force is done. What is the next one? Applied force हो गया उसके बाद. सर थोड़ी आपकी Hinge. आवाज कम आ रही है सर. आवाज इसलिए कम आ रही है because today I am using headphone. Okay, हाँ ठीक है. Is it now okay? yes, sir. हाँ सर अब वहाँ पर. So okay, so what is the next step? Applied force हो गया. उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? सेल्फ वेट Self weight. Correct. Self-weight, yeah. Self weight X. सर वो आपकी आवाज नहीं आ रही है आपकी सर आपकी वॉइस कुछ ज्यादा कम हो जा रही है एक मिनट एक्चुअली ये आज थोड़ा सा ये हाथ में पड़ा है. Okay, now it is audible. यस सर Okay. Yes, sir. So next is to draw self weight. So self weight, we all know the self weight always act vertically downwards. So I will make somewhere here. I will make it somewhere here, and I will say that it is vertically downward. And what is the weight? Mg. 1200 A self weight of 1200 Newton. So I will write 1200 here. 1200 Newton. Okay. Applied force हो गया, self weight हो गया. What is the next step? Normal reaction. Reactions. Reaction. Okay. So Normal reactions, as you can see, there is a hinge support at A. So how many reactions it will be? Two reactions. Two reactions. Two So let reaction. us say one Two. will be, let us say vertical reaction at A, and one will be horizontal reaction at A. Now regarding this directions of HA and VA, I already told you, you can take the directions as per your wish, wherever you want to take. Okay. Later, if we get negative answer, we will tell that assumed direction is wrong. Okay. So okay. So free body diagram is done. After that, before applying conditions of equilibrium, what should we do? Sir, जो टेढ़े उनको सीधा कर जो देना. टेढ़े Yes. forces है उसको The ones who inclined are इंक्लाइन एंगल को सीधा करने का है Yeah. So there is only one force which is inclined. So I will make a resolution of force here at the point of application. And now because this angle is given to us as 30,
So I will write this as FCD cos 30 and this will be FCD sin 30. किसी को डाउट? नो सर। ओके, तो खत्म, काम खत्म हो गया. No, अगर sir. तुमने FBD अच्छे से बना दिया तो काम खत्म हो गया. Now just it is application of fx, fy and movement. 3 lines. So let us start. Okay. Yes, sir. Summation of fx. Summation of Add all the forces in x direction. So what are the forces in x direction? HA going towards left side. So it will be 5 minus kilonewton. HA. Minus Okay. FA Then plus 5 minus kilonewton. FCD sin 30. ये भी आएगा ना? Yes, Yes, sir. sir. X. And then we have plus phi equal to 0. Okay. Y equal to 0 because यहाँ पर कहीं पर भी आपको resultant word दिख रहा है. No, sir. Question नो में सर। क्वेश्चन में अगर resultant word नहीं दिखा तो वो कौन से चैप्टर का सम है? इक्विलिब्रियम। Equilibrium का. And because it is equilibrium, we can write summation of fx equal to 0, summation of fy equal to 0. 0। So let us say that 0. this is equation number 1. Now similarly, I will write summation of fy. Add all the forces in y direction. So what it will be? माइनस CD cos लाइन से 30 चलो. VA सबसे पहले VA ऊपर जा रहा है पॉजिटिव. VA Then minus 1200 1200 minus FCD cos CD cos 30 30 is equal to 0 और कुछ नहीं है. So let this be equation number 2. यहाँ से कुछ नहीं मिल सकता है, इक्वेशन बना के छोड़ दो. लास्ट स्टेप. लास्ट कौन सा इक्वेशन है? Moment. Moment. Movement we can take Moment. about any point. We can take movement about any point. But here you can observe that there are two forces at this point A. So let us take movement at A only. A। So movement at A equal to 0. Okay. So if I take movement at A equal to 0, the movement from HA and VA becomes 0. Okay. What can you tell about this force? 1200 Newton. इसका क्या होगा? जीरो होगा Zero सर. ही होगा. Because it is passing through the same point. तो उसका भी लेने की जरूरत नहीं है. Similarly, what can you tell about this FCD cos 30 वाला force? Zero. वो भी 0 होगा because it is also passing through same point A. So can you see? Just by taking point A, we have eliminated 4 different forces of movement of 4 different forces. Okay, last कौन सा बच गया ये? So this is making a प्लस FCD anti-clockwise movement. So it anti-clockwise will be plus, that is FCD. I can write FCD into distance. Force is horizontal, so distance will be वर्टिकल. 3 Vertical. vertical. vertical Vertical. distance is given in the question as 3. So multiplied by 3. उसके बाद कौन सा बच गया ये 5 वाला? Making up clockwise movement. So it will be minus of 5 multiplied by, what is the distance? सर हाँ. this Sir, FCD Sin 30 Oh, sorry. हाँ, sin 30 लिखना भूल गया मैं. Oh. Okay. Yeah. So it will be FCD sin 30. Now it's correct. 5 into what will be the distance? 4. 4 4. Question में बोल दिया है कि the total Question में length of given the है. mast is 4. So 5 into 4 and nothing will come more. So this equal to 0. So can I not get the answer for FCD from here? Yes sir. yes sir So please solve and tell me the answer. FCD equals to 13.33 kilonewton. Okay, 13.33 kilonewton. Now just observe equation 1 and 2. क्या हुआ? Okay. Now just observe equation number 1 and 2. नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलना चाह रहे हो? Can someone tell me what he is asking? I am not able to get him. Okay. nothing तो FCD आ रहा है 13.33 और 13 जिसका जो आ रहा है 13 डेसिमल के बाद वो ले लो. नाउ जस्ट ये जो हमने इक्वेशन बना के रखे, इक्वेशन नंबर 1 and 2, वो शो के लिए नहीं है. ओके, यूज देम. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ FCD हियर, व्हाट आई विल गेट इज VA minus 1200 minus FCD is 13.33 cos 30 equal to 0. Now if you observe in this entire equation only one is unknown, that is VA. So just calculate and tell me the answer for VA from here. 1211.87. नहीं यार, इतना बड़ा नहीं आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है. 1200 तो जाएगा ना. का वैल्यू Yes sir, इतना ही बराबर आ रहा है. बराबर सेल्फ वेट 1200 है तो उतना आएगा. बराबर 1211. 1211.54. okay 1211.54 kilonewton. Okay, so now again we have equation number 1 with us.
So put the values in equation 1. So what I will get is minus HA minus FCD. FCD value is 13.33. Sin 30 plus 5 is equal to 0. So now you can see that only unknown is HA. So just HA. again calculate Sir. and tell me the minus answer for HA. 1.05. हाँ बोलो. सर उधर किलो न्यूटन है ना, तो उधर से 1200 न्यूटन है, तो उसको किलो न्यूटन में नहीं कन्वर्ट करेंगे. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. Yes, sir. देखो अच्छा पॉइंट पकड़ा उसने. पूरा सम गलत हो जाएगा, पूरा सम गलत हो जाएगा. सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, what we can do 5 into 4. सर 1200 को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, डिवाइड बाय किलो 1000 न्यूटन में करके नहीं होगा सर. कन्वर्ट कर देंगे. लेकिन अभी पूरे आंसर जो हमारे है वो रॉन्ग हो जाएंगे ना, आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे. सिर्फ VA का रॉन्ग होगा ना फिर. सर ये का रॉन्ग है ना फिर. नहीं सर, VA उसको direct FCD नहीं substitute कर FCD देंगे भी तो- रॉन्ग हो जाएगा ना. FCD हाँ FCD VA का तो रॉन्ग हो जाएगा वो बराबर, तो किलो VA का न्यूटन रॉन्ग हो जाएगा. ओके सो लेट अस से वही दिस इज तो। 1.2. अगर मैं लिखता हूँ इसको, जस्ट आई विल चेंज दिस एज 1.2 बराबर किलो न्यूटन में. 1200 न्यूटन है तो इट विल बी 1.2 किलो न्यूटन. किसी को डाउट है? नो नो सर. सर. देखो No, मेरे को sir. आंसर जब तुमने बोला था तब डाउट आया था, बट ठीक है. गुड ऑब्जर्वेशन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट. तो सर वो आ रहा है 12.74 किलो न्यूटन. मतलब सुबह से लेके लेक्चर में बैठने के बाद भी जाग रहे हो. सो इट विल बी 1.2. हाँ, सो व्हाट विल बी बी आंसर नाउ? 13.07. 13.07. So are you all agreeing to this answer 13.07? Yes, sir. Okay, good. Then so now we can, yes, everything is there. HA में तो सब किलो न्यूटन में ही है तो कोई इशू नहीं है. So yes, what is the answer for HA? minus 1.05. Minus 1.66 kilonewton. So what does this minus indicate? That direction which we have assumed towards left side, it is not towards left side, Is wrong. but on the right hand Right side. side में. So finally what we have to write is like this: HA is equal to 1.66 kilonewton on the right side. ठीक है, डायग्राम में चेंज मत करना, जस्ट राइट इट लाइक दिस वे. डायग्राम में जो एक बार बना दिया वो बना दी. ओके, सो एनी डाउट्स टू एनीवन नाउ? No, sir. No, sir. Okay, so this all are the university exam problems and you can see only 3 lines: fx, fy and movement. उसके अलावा कुछ नहीं है कोई भी सम में. Okay, let us go to the next question. Determine the tension T in the cable and the reaction at pin support. Pin का मतलब क्या होता है अभी हमने देख लिया. What is pin? Hinge. Correct. So at the hinge support of a beam loaded as shown, neglect the weight of the beam and size of the pulley. तो पिछले वाले सम में हमको जो मास था उसका वेट भी दिया था, यहाँ बोल दिया निग्लेक्ट कर दो, तो हम भी निग्लेक्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं है. Okay, so let us now make the free body diagram first. So if I make the free body diagram, let us say I will make it here. सर हाँ बोलो. सर एक मिनट लास्ट वाली स्लाइड दिखाओ ना प्लीज. Just a minute. हाँ, सर वो 13.07 नहीं आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 12.7 आ रहा है. पता नहीं, अब किसी ने बोला, मैंने पूछा भी तो सबने हाँ बोले वी आर अग्रीइंग. नहीं कितना सर, आ रहा मैं है अभी एक्चुअली लॉस हो गया. 12.74. 12.74. So the ones who are telling 13, please make a correction. 12.74. तो आई थिंक उसका इफेक्ट आगे तो नहीं पड़ेगा, ये सही है. ओके ओके, सो इज इट ओके नाउ? यस सर. चैट बॉक्स, अरे यार चैट बॉक्स. ओके 12.74. ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे थे हम लोग. A, C एंड B. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले क्या बताते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में? Applied forces. So I will make an applied force. Let us say this is 8 किलो न्यूटन. याद रखना सब कुछ किलो न्यूटन में होना चाहिए, बिकॉज एक चीज किलो न्यूटन में. पिछले सब में धोखा खा गए अपन. 4 किलो न्यूटन. ओके, और क्या आएगा अप्लाइड फोर्स में? टेंशन रोप वाला. Tension. टेंशन. देयर इज अ रोप हियर. आप क्वेश्चन में दिया देखो, डिटरमाइन द टेंशन टी इन द केबल. तो केबल हो, रोप हो, थ्रेड हो, ऑल विल बी कंसीडर्ड टू बी एज अप्लाइड लोड.
and it will be always away from the body and along the rope. So am I correct if I draw it like this? Yes, sir. Okay. No, sir. Why no? बोलो ना भाई, why no? हो सकता है wrong हो, बताओ तुम्हारा क्या लॉजिक था, क्यों no? No, sir. अरे तो no क्यों, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों no? सही है सर, मतलब सर सही है, सही है। अच्छा सही है, मतलब no का मतलब सही है, हाँ। ठीक है। हाँ, सर बेटी का फोर्स ऊपर कैसे बना? कौन सा फोर्स? बेटी। बीटी, बीटी नहीं एक्चुअली वो हाँ सही। टेंशन फोर्स है। बी ओके, है हाँ और टेंशन है। एक मिनट, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, द पॉइंट बी, पॉइंट बी पे वहां पर आपको एक केबल दिख रहा है जाता हुआ। यस सर। हाँ, तो हमने क्या डिसाइड किया था स्टार्टिंग में जब हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रहे थे, वेन एवर देर इज अ केबल इट विल बी कंसिडर्ड एज अ अप्लाइड फोर्स, द फोर्स शुड बी अलोंग द केबल, मतलब केबल की लाइन में हाँ। होना चाहिए, एंड इट शुड बी अवे फ्रॉम द बॉडी। तो हमारी बॉडी अंडर कंसिडरेशन अभी ये है ए बी, तो इससे दूर जाना चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग लाइक दिस। अब सही है? ओके सर। यस। Yes. ओके, सो लेट अस से आई एम टेकिंग दिस एज टेंशन टी, क्योंकि क्वेश्चन में टेंशन टी बोला इसलिए मैं टी लिया, नहीं तो आई कैन ऑल्सो टेक एफ फोर्स बी डी, फोर्स एफ बी डी भी लिख सकता था, बट क्वेश्चन में टी वर्ड यूज किया, उससे मैंने टी वर्ड यूज किया। ओके, सो अप्लाइड फोर्सेज आर डन। व्हाट इज द नेक्स्ट फोर्स विच वी शो? सेल्फ वेट। क्वेश्चन में क्या बोल दिया सेल्फ है? वेट। क्वेश्चन में क्या बोल दिया है? निग्लेक्ट, तो अपन भी छोड़ दो उसको, निग्लेक्ट कर दो। ओके, नेक्स्ट नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम कॉन्टेक्ट सरफेसेस। तो यहाँ सरफेस तो कॉन्टेक्ट नहीं है, बट देर इज अ हिंज हियर, तो हिंज विल बी रिप्लेस्ड बाय टू रिएक्शंस, लेट अस से VA एंड लेट अस से HA। और कुछ आएगा? सर ऊपर भी हिंज है वो। नहीं, देखो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हैं? इस बॉडी का बना रहे हैं, तो सिर्फ इस बॉडी पे क्या क्या हो रहा है वो देखेंगे, ऊपर क्या हो रहा है वो नहीं देखेंगे। ओके, बाय द वे गुड क्वेश्चन। हाँ सर चलो, बट वो भी तो है ना, उसके वजह से तो हो रहा है ना, वो पुल्ली नहीं नहीं नहीं, देखो दो बॉडीज है, करेंगे। अगर हम लोग इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ये पुल्ली का, तब मैं ये फोर्स कंसीडर करूंगा और ये फोर्स कंसीडर करूंगा। तो मतलब सारे नीचे के फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हाँ, नीचे कुछ नहीं, जो बॉडी आप बना रहे हो, जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, सिर्फ उसके फोर्सेस देखना है आपको। तो सर कैसे एग्जाम में कैसे समझ में आएगा एग्जैक्ट किसका बनाना है? क्वेश्चन देखो ना क्या बोला है, डिटरमाइन टेंशन इन द केबल एंड रिएक्शन एट पिन सपोर्ट फॉर द बीम, मतलब तुम्हारी बॉडी क्या है? बीम है, नॉट द पुली। ओके ओके, हाँ समझ गया। ओके, क्वेश्चन में दिया बीम के ऊपर आपको करना है। ओके, समझा। so now we are ready to apply condition for equilibrium, is it? ये सर No. ये एंगल इंक्लाइंड है Yes, because we don't Angle have one inclined of the है ना सर? angle। हाँ, तो एंगल इंक्लाइंड है, तो ये एंगल दिया हुआ है कि अपना क्वेश्चन में? नहीं No, नहीं दिया, बट कैन वी फाइंड आउट? Yes, sir. Yes, we have the formula tan theta, लिख दिया क्या? हाँ, यहाँ लिखता हूँ, tan theta is opposite, that is 4 upon 2, tan theta is opposite upon adjacent, तो कितना आ जाएगा आंसर? 70.48. 63 point इतना सिंपल सब में क्यों अलग अलग? 3.43 ये कैलकुलेटर डिग्री रेडियन में जा रहा है बार बार। 43.43 63.43, so this angle is 63.43, so I can write, हाँ आएगा ना? सॉरी, हाँ 4/2, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज 2, हाँ, तो 4/2 का आंसर कितना आ रहा है? 63.43 ओके, आंसर, ओके, आंसर इज करेक्ट, so this angle is 63.43, so if this is 63.43, if I resolve this, this will be T sin 63.43 and this will be T cos 63.43। किसी को डाउट? नो सर। So now can you apply conditions of equilibrium? Yes, sir. तो करो ट्राई, देखो सम कितने सिंपल है, देखो कुछ नहीं है सम्स में, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सम्स फटाफट करोगे। तो जस्ट अप्लाई दिस थ्री कंडीशंस, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट विच पॉइंट यू विल टेक? From point A. ए ले लो, ए ले लेंगे तो तीन फोर्स का 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो विल यू ट्राई?
Yes, sir. Yes, sir. ट्राई 2 मिनट्स में ज्यादा नहीं लगना चाहिए, जल्दी सर टेंशन की वैल्यू आ रही है 11.23 किलो न्यूटन. 11.23. Yeah, that's near to my answer which I have, so I can assume that to be correct. So summation of fx equal to 0. For those who are not solving, I should write it on the screen so that I can also give it to you later. Summation of fx, so it will be HA positive minus T cos 63.43 और कोई force x में नहीं है, so this should be equal to 0. Let this be equation number 1. Similarly, if I go for Fy, it will be VA minus 8 plus T sine 63.43 minus 4 equal to 0. So from here what I will get is VA plus T sine 63.43 is equal to 12. Let this be equation number 2. And if I take moment about point A, क्या हुआ? If I take moment about point A, the forces HA and VA moment will be 0. Now this force 8 is making anti-clockwise movement, so it will be plus 8 into distance from point A is 1. Then this T cos 63 is again passing through the same Sir. point A, so movement will be 0. हाँ बोलो. सर ये जो 8 है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, हाँ क्लॉकवाइज में बराबर. माइनस आएगा ना. हाँ माइनस आएगा ना. बराबर माइनस. ओके, देन इट विल बी टी साइन कौन सा है? एंटी क्लॉक है, सो इट विल बी प्लस टी साइन 63.43 into distance from point is how much? 2. 2. And then finally this 4 is making clockwise movement, so minus 4 into distance is 3, and this all should be equal to 0. 11.18. Okay, Sir, so here there is only one unknown, that is T. So solve and tell me the answer for T in 11. 11.13 किलो न्यूटन. 11.18 kilonewton. So this becomes the answer for tension in the rope or cable T. Now they have also asked us to find the reaction at pin support. तो काफी सिंपल है. So T को क्या करेंगे? Put the value of T here. So what I will get is VA plus 11.18 sine 63.43 is equal to 12. So from here I can get the value of VA. 2 किलो. Exact 2 आ रहा है. 2.007. 2.00 मतलब exact 2 ही हो गया वो. Okay, last one. HFI आ रहा है. Okay, so again I will substitute the value of T here also. So I will get HA minus T, that is 11.18 cos 63.43 equal to 0. So I will get HA is equal to 5 ना, कितना बोले? 5 kilonewton. So we got the answer for 5.03. 5.03 is approximately 5. चलेगा. Okay. So we got the answer for VA, HA and T. So can I tell now my solution is complete? बोलो yes. No sir. No sir. रिजल्टेंट लेना पड़ेगा सर. A point. करेक्ट. और ये चीज हमने पिछले प्रॉब्लम में भी नहीं किए, भूल गए. ठीक है, जस्ट गो बिहाइंड. देखो ये प्रॉब्लम में भी हमने क्या निकाले? वी फाउंड आउट HA. ओके, वी फाउंड आउट VA. हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट A, वर्टिकल रिएक्शन एट A. अपने को क्वेश्चन में ऐसा बोला था क्या? क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला है? फाइंड रिएक्शन एट हिंज सपोर्ट. हॉरिजॉन्टल रिएक्शन या वर्टिकल रिएक्शन बोला था? No sir. No sir. So that means we want resultant reaction. Resultant. So we can write now resultant reaction at A is equal to square root of HA square. याद आ रहा है ना कुछ? Yes sir. बचपन से यही करते आए. हाँ, is equal to. So what will be answer? 5.84. 5 point कैसे possible है? 12.84 है. 12.84 is, I can assume, correct. Okay, so if this is RA, now I will ask the same question. Is our problem complete? No sir. No, because force is a vector quantity, it has magnitude as well as direction. तो ये जो हमने RA निकाले वो क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है.
So for direction again we have the formula with us. Theta of A Theta. we can write tan inverse of summation VA upon summation of HA, or we can directly write VA upon HA. So what is the answer coming? 82.57. 82.57. Now you can say the sum is complete. तो एग्जाम में भी क्या होता है, घाई में लोग HA VA निकाल के छोड़ देते, तो 5 में से मिलेगा 3 मार्क्स. RA आपने नहीं निकाला, मैग्नीट्यूड 1 मार्क्स कैंसिल, थीटा आपने नहीं निकाला, 1 मार्क कैंसिल. सो आउट ऑफ 5 यू कैन गेट ओनली 3, जबकि करना कुछ भी नहीं था. Okay, so similarly here same question is there. Here also they are asking us reaction at pin support. They are not asking us vertical reaction or horizontal reaction. So we need to find out the resultant reaction at A. So RA will be root of HA square plus VA square, which will be equal to root of सर VA 5 square plus Less than 12.84 2 था ना? स्क्वायर. पिछले वाला वैल्यू कुछ अलग आ रही है मेरी. किसकी वैल्यू अलग आ रही है? VA 12.84 ही था ना? पिछला वाला 12.84 था. हाँ. यस सर. नहीं, इधर का क्या आंसर अलग आ रहा है? VA का ये का सर सही है. सही है ना? ये का 1.96 आ रहा है सर. 1.9 मतलब 1.2 हो गया ना, अप्रोक्सीमेट. हाँ. Okay. So what is RA coming out to be here? 5.8. 5.38 के लिए किलोमीटर. 5.3, 5.4 something. 5.38. Okay, 5.38. 5.38. 5.38 kilonewton. So Kilonewton. again we can say Kilonewton. that our problem is not complete because it is only the magnitude. So we can write theta Magnitude. is equal to tan inverse of Tan inverse Fy, that is 2 upon 5. Fy by Fx. 21.8. 21.80 degree. So now we can say our 21 problem point- is complete. Okay, done. Should we move forward? Yes sir. Okay. Aha, मजा आ गया. This एक problem again comes for around it has appeared in exam for 2 to 3 times. The same तो problem. लास्ट स्लाइड दिखाओ ना 1 मिनट. लास्ट स्लाइड दिखाऊं? ले बाबा देख ले. ओके सर. सर बोलो. सर मैकेनिक्स का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा? पेपर पैटर्न इज आई थिंक 20 मार्क्स एमसीक्यू इज देयर. 2 मार्क के 10 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू, और उसके बाद आई थिंक 5 मार्क के 4 क्वेश्चन 20 मार्क, फिर 4 मार्क के 4 क्वेश्चन 20 मार्क. कितना हो गया? 20 40 50 60, और 5 मार्क के 2, 5 मार्क के 2, ऐसे हो सकता है. और सर वाइवा? सर थियरी कुछ नहीं है ना? थ्योरी आ सकता है ना, जैसे मैं बताया 5 मार्क का क्वेश्चन में क्या आ सकता है? व्हाट आर द लॉज ऑफ फ्रिक्शन आ सकता है, लॉ व्हाट इज लेमिस थ्योरम आ सकता है, व्हाट आर द कंडीशंस टू अप्लाई लेमिस थ्योरम आ सकता है. थियरी जो हमने क्लास में की बस वही, उससे ज्यादा कुछ नहीं. सर वाइवा? वो सैम का था ना, क्या चीज? सर आपने बताया ना 20 मार्क का ये सब. हाँ वो same वो का सब है ना? हाँ सेमेस्टर. और सर वाइवा का क्या? भेजा ना मैंने अभी कल. नहीं मार्क मार्क्स 25 पूछ मार्क्स. रही है. 25 मार्क्स. ओके सर. Okay. So next question is this. A very simple question, but student makes one single mistake. Let me see now whether you make a mistake or you can solve it properly. A roller of weight W equal to 1000 Newton acts on a smooth inclined plane. It is kept from lowering down by a plane by the string AC. Okay. Find the tension in the string and reaction at contact point D. So first of all, tell me what is the body here? कौन सी बॉडी के बारे में बात कर रहा है? A roller of weight. A roller body. रोलर के बारे में बात कर रहे हैं. So I will make a roller here. ठीक है, रोलर को थोड़ा सा छोटा बना दिया. Let us say this is a roller. Okay. So first of all, what force I should make? Applied force. Applied force. So what is the applied force here? Tension. Tension in Tension in the cable. Okay, Tension. so I will make a AC. tension in the cable T. Then second, what we show is the self weight. So self weight should be acting vertically downwards. So it will be 1000 Newton. Okay. उसके बाद
reaction. Reaction Reaction. from contact surface. So this circle or this roller, you can see it has contact here at this point. मैं येलो या इससे बनाता हूँ at point D. Is it having a contact? Yes, sir. Yes, sir. सर वो नहीं है So by our logic, what we know, the surface reactions are what? From surface to body. Perpendicular. It is from surface to to the body and perpendicular. perpendicular to the surface. तो हमारा रिएक्शन जो होगा वो ऐसे होगा. It should be perpendicular to surface and from surface to body. किसी को डाउट? सर No, sir, एकदम क्या हुआ? सर ये बॉडी तो साइड है ना बॉडी क्या है? बॉडी हाँ, मतलब तो है ना एक पॉइंट हाँ हाँ हाँ, सरफेस रिएक्शन कैसे आएगा क्या कैसे आएगा? सरफेस रिएक्शन कैसे अप्लाई करेंगे सर सरफेस तो रिएक्शन, बॉडी सरफेस रिएक्शन कब होता है? When there is a contact. तो यहाँ पर कांटेक्ट है तो कांटेक्ट का रिएक्शन आएगा ना. आएगा सर क्योंकि लास्ट शायद प्रॉब्लम में आपने एक बार बताया था कि उसमें नहीं था वो भी टाइड ऐसा ही था कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. जस्ट अ मिनट, लेट मी गो बैक. ये देखो यहाँ पर भी हमने किए. बॉडी हवा में थी ना, बट वो टाइम ये देखो ये पॉइंट ए मैंने दिखाया हूँ, यहाँ पर भी पॉइंट बी पे रिएक्शन दिखाया हूँ. यहाँ देखो यहाँ पर भी हमने पॉइंट बी पे रिएक्शन दिखाए. एवरीवेयर वी आर शोइंग द रिएक्शन. Yes, sir. नहीं सर, एक समय ऐसा मतलब बॉडी तब हाँ टाइम में था, तो वो टाइम नहीं था. देखना पड़ेगा मुझे, वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा, बट रिएक्शन शुड बी देयर. अगर कांटेक्ट है तो रिएक्शन आएगा. सो नाउ आई कैन मेक द रिएक्शन लाइक दिस, दैट सर वो आगे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना फिर. हाँ, वो एक मिनट बताता हूँ. पहले अपन नॉर्मल बनाते हैं, पहले से मैं आगे ले लूंगा तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे. सो लेट अस से दिस इज नथिंग बट रिएक्शन एट पॉइंट डी. किसी को डाउट? No, sir. No, Now, sir. how many forces are inclined? सर 3 4 There are two forces which are inclined. One is this T1 and one is this RD. तो देखो यहीं RD. पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. Now just see how to find out the angles. स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक कर देंगे. देखो सर Now हम we- आरडी को आगे भी कर सकते हैं ना. हाँ करूंगा ना बेटा, करूंगा. हाँ. लेमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे आगे करना ही पड़ेगा बाय लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि एक पॉइंट है, 3 फोर्स लग रहे हैं, तो दिमाग में फौरन मेरे लेमिस थ्योरम आ गया, और लेमिस थ्योरम लगाने के लिए मैं उसको आगे लेके जाऊंगा. ठीक है. अच्छा, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी एंगल के बारे में. नाउ इन दिस स्मॉल ट्राइंगल, जस्ट ऑब्जर्व दिस स्मॉल ट्राइंगल. हमको ये एंगल दिया है 45, ये हमको मालूम है 90 होता है. रिएक्शंस आर परपेंडिकुलर. सो व्हाट कैन यू टेल अबाउट दिस एंगल? 45. 45. That means the reaction is making angle 45 with respect to x-axis. किसी को doubt? No, sir. So I can make that this angle is 45 degrees. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ? Just by law of transmissibility, I am transferring this force here, and I am telling this is RD making an angle of 45 degrees. I hope no one has doubt here. No, sir. Okay. No, sir. Now, regarding the angle of T. Now regarding angle of T, क्या आएगा? 15 degrees. नहीं तो क्या आएगा? बताओ. यहीं पर लॉजिक है जो एग्जाम में सब लोग रॉन्ग कर देते. What should be angle? 75 degree. 75. कहाँ से लाया? 75 कहाँ से लाया? Can you say me the logic? सर यहाँ पे एक ये ड्रॉ किए ना, ऐसा नॉर्मल जिधर डी है ना पॉइंट, हाँ पॉइंट डी है. हाँ ऐसी लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू नीचे वाला ट्रायंगल की बेस. डी से. हाँ डी से ओके, ले बना दिया. अब स्ट्रेट एंगल हो जाएंगे 45 और ये 45. हाँ तो ये 45 होगा ना. और उससे क्या होगा फिर? फिर ये 15 मालूम है सर. रेडियस हाँ. ड्रॉ करेंगे अपन रोलेक्स से, तो हाँ. ये 90 परपेंडिकुलर हो जाएगा टेंजेंट थ्योरम से, हाँ तो वो ये 90 हो गया. जाएगा. ये एंगल 75 हो गया. 105 बराबर. 180 में से माइनस उसका कंप्लीट होने दो, उसका कंप्लीट होने दो. तू बोल रहा है ये एंगल 75 हो जाएगा. बराबर. यस सर. हाँ, लेकिन इज दिस एंगल विच यू आर शोइंग मी, इज इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस? नो सर. इज इट विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं. एक्सिस? नहीं. तो ये बीच का एंगल तुम मुझे बता रहे हो कि ये बीच का एंगल 75 है.
बट हमको एंगल हमेशा काई में लगता है, आइदर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई। समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपका लॉजिक सही है बट हमारे लिए वैलिड नहीं है, ठीक है? तो इसी की तरह कुछ और सोचो, आंसर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ये देखो, जैसे उसने क्या बोला, सर एक पैरेलल लाइन बनाओ, सो कैन आई नॉट ड्रॉ द सेम पैरेलल लाइन हियर आल्सो? यस सर, करस्पॉन्डिंग एंगल यस सर। अब ये एंगल अगर 45 है, नीचे वाला अगर एंगल 45 है, तो ये टोटल वो एंगल भी भी कितना हो 45 हो जाएगा? जाएगा। ये टोटल 45 एंगल हो जाएगा 45 हो 45, जाएगा। आउट ऑफ विच दिस इज 15, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा? 20 30 हो जाएगा ना? 30 30। 45 में 15 गया तो 30 बचेगा ना? यस सर। So this 30 is the angle with respect to x axis. 60। Yes. यस सर। क्यों चाहिए? एंगल विद रिस्पेक्ट टू x axis मिल गया ना 30। यस सर। So can I not write like this, that this angle with respect to x axis is 30 degrees? खत्म। यस सर। किसी को डाउट है? बोलो हाँ। नो। अरे हाँ No, बोलो sir. ना। नहीं है? ठीक है, देखो मैं फिर सर से एक वो बार जो टीके अपवर्ड वाला एंगल है हम उसको y एक्सिस से 60 लेके भी कर ले सकते हैं ना? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुमको वो 60 यहाँ पर ऐसे बताना पड़ेगा कि दिस इज 60, कोई प्रॉब्लम नहीं, यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो अगर किसी को डाउट नहीं है, शुड वी प्रोसीड फर्दर? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट दिस इज 45 एंड बिकॉज दिस इज 45 दिस विल बिकम 30 व्हिच इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ओके, तो अगर ये आपको किसी को बताना है, तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। So both the ways you can do. Now I can observe that there are three forces and they are passing through single point. So which theorem I can apply? Lami's theorem. Lami's theorem, and the answer will be coming in one single line. Okay, so the main thing was here to find out the angles which students make the mistake. So let us start with the Lami's theorem part. So Lami's theorem is force, that is, let us say I will write T divided by sine of angle, I will make it blank now, is equal to RD divided by sine of, again I will leave the angle blank, is equal to 1000 divided by sine of, again angle is blank. Now let us discuss about the angles here. T divided by, so if I am considering force T, the angle between these two forces, so it will be these two forces angle 90 plus 90 plus 45 plus 90. 135 degree. 90 plus 45. Similarly, if I consider RD, I need this total angle. So that will be 90 30 plus 95. plus 30. 90. 30 plus 90. Okay. And then finally, if I want the angle between 1000, so I need this complete angle. So वो कितना होगा? 180 minus 45 minus 30. minus 30 minus 45. Correct. So it will be 180 minus 30 minus 45. So finally what I will get is T divided by sine of 135 is equal to RD divided by sine of 120 is equal to 1000 divided by sine of कितना आएगा? 105. 105. So what you do as usual, take these two terms first and you can get the answer for RD, and then finally take this term and this term first and last and get the answer for T. That's it. Only one liner problem. So T is equal to 732.05. And RD is equal to 896.57. RA equals to 896.57. I am not getting answers from anyone. एक मिनट हाँ. RD is equal to 896.57. नहीं, only one of you please answer because बहुत disturbance हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. T is equal to 732.05 Newton. 732.05 Newton. Okay, 732.05 Newton is T. What about RD? 896.5 something. Okay, जो भी आ रहा है वो लिखो. So are you all agreeing with this answer? 732 and 896. Yes, sir. Okay, किसी को कोई डाउट? Okay, so one thing you have to remember is the एंगल जो है आपने लिए क्या चीज? हाँ बोलो. सर मेरा RD नहीं आ रहा सर. RD नहीं आ रहा है. RD क्यों? RD तो सिंपल है ना.
1000 into sine 120 divided by sine of 105. Okay, one more advice I will give you, not advice, let us say it is a compulsion. Whenever you start solving mechanics, please reset your calculators. क्योंकि तुम लोग उसके पहले मैथ्स का लेक्चर अटेंड करते हो, उसके बाद फिजिक्स करते हो, एंड देयर यू नीड टू सेट योर कैलसी इन द रेडियन मोड, और मैकेनिक्स में आपको डिग्रीज मोड में लगता है. तो एग्जाम में आप बोलोगे सब कुछ करके आए, बट सब आंसर रॉन्ग आएंगे. सो वेन एवर यू स्टार्ट मैकेनिक्स पेपर, जस्ट रीसेट योर कैलसीज सो दैट इट इज इन द डिग्री मोड. और फिर डाउट आता रहा तो बीच बीच में वापस भी एक दो बार रीसेट मार लेने का. ठीक है. So let us go to the next question which says this. कहाँ गया ये वाला? Yeah. So the diagram I have made it freehand. What is the remuneration for export? हाँ. No, I am not getting it. क्या कुछ इश्यू हो रहा है? बराबर आवाज ही नहीं आ रही तुम लोग की. सर पीछे जाओ सर. पीछे जाओ. ओके. गया. सर प्रीवियस करो. दिखाया ना. और प्रीवियस आरडी नहीं आ रहा है, मेरा पता नहीं. आरडी क्यों नहीं आ रहा है? जस्ट मल्टीप्लाई कर. कैलकुलेटर में लिख. कैलकुलेटर में लिख. सुन ना, कैलकुलेटर में लिख 1000 मल्टीप्लाइड बाय sin 120. 1000 मल्टीप्लाइड बाय sin 120 डिवाइडेड बाय sin of 105 लिख, बस आंसर आ जाएगा. यस सर. Okay. So now here, next question. A prismatic bar AB. अब देखो ये नया इंग्लिश वर्ड डाल के तुमको डरा रहा है. प्रिज्मेटिक बार. डरने का नहीं. ठीक है. अपने को अपने लिए सब डंडी है, और कुछ भी हो, प्रिज्मेटिक बार हो कुछ भी, अपने लिए सब बॉडी है. A prismatic bar AB of length 6 meters. So the total length is given as 6 meters and weight 3 kilonewton. इसका self weight भी दिया है. The self weight is 3 kilonewton. Is hinged to the wall supported by the cable BC. Find hinge reaction and tension in cable BC. तो क्या पूछा है वो सब बाद में देखेंगे. What is the first step? फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम. तो बॉडी कौन सी है यहाँ पर? कौन सी बॉडी है यहाँ पर? एबी. बॉडी इज AB, अ प्रिज्मेटिक बार AB. तो यहाँ पर मैं ये बॉडी बना दिया. ये लो मेरी बॉडी. सो मेरी बॉडी मतलब प्रिज्मेटिक बार की बॉडी AB. AB. What are the things? सबसे पहले क्या बनाएंगे? अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स है कुछ? Applied force. नहीं है. अरे बराबर देख रहे पापा, नहीं ये बोलने से पहले बराबर देख. Is supported by cable BC. Supported by cable BC. तो केबल है. So at point B there is a cable. So I will write or make here tension in cable BC. कुछ डाउट? No, sir. नो सर. उसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग? सेल्फ वेट. सेल्फ वेट. तो यहाँ पर वो लेना पड़ेगा. We know that. What we know that? क्या मालूम है हमको सेल्फ वेट के बारे में? सेल्फ वेट lies exactly at the center. सबसे पहले तो it lies exactly at the Center center and what? Vertically downwards. Vertically downward. This is 3 Vertically kilonewton, downward. and I will write that this distance is 3 meters and this distance is also 3 meters. किसी को डाउट? नो सर. No. Okay. Then Sir, बराबर है ना? रिएक्शन. हाँ क्या हुआ बोलो? sir, angle. एंगल अभी तक अपना फ्री बॉडी डायग्राम Angle भी कंप्लीट हुआ क्या? लिखेगा ना 30 डिग्री का. अरे मेरा भाई पहले अभी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हुआ. पहले फ्री बॉडी No डायग्राम sir, कंप्लीट ये कर बोल रहा था फिर angle पे ABC का. नॉर्मल. अच्छा ये एंगल. लो लिख दिया हाँ. बस. मैं वो इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि वो एंगल गलत है, हमको वो एंगल यूज नहीं करना है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था वो लिखने को. ठीक है. लेट अस से. हाँ चलो आगे बढ़ेंगे. Okay, क्या आएगा sorry आगे? sir, फिर. रिएक्शंस लिखेंगे. रिएक्शन. Reaction. Reaction at point A. Hinge There is a hinge. reaction. So hinge we will be replacing by two reactions. So it will be HA and VA. Directions are up to you. Whatever you want to take, you can take. ठीक है. अब आ जाओ. Yes, sir. अब आ जाओ एंगल्स पे. कौन सा फोर्थ टेढ़ा है? सर बी पे रिएक्शंस नहीं होंगे.
बी पे क्यों होंगे? TBC तो दोनों टेढ़े। TBC. वेरी गुड क्वेश्चन। चलो बी पे रिएक्शन क्यों नहीं आएगा बताओ? बहुत व्हाई देयर विल बी नो रिएक्शन एट बी? सर एक ही पॉइंट फिक्स है ना सर उसमें प्रिजर्वेटिव बार में, ए हिंज है। बी के Correct. लिए E तो कांटेक्ट फोर्स से hinge है। रिएक्शन होना चाहिए ना। हाँ, बी के लिए कांटेक्ट होना चाहिए, बट उसने क्या बोला है? इट इज सपोर्टेड बाय केबल बीसी। केबल बीसी ने उसको ऐसे सपोर्ट किया कि उसका कांटेक्ट लूज हो रहा है। तो अगर देखो नीचे अगर जमीन है, सपोज नीचे जमीन है, तो वो केबल बीसी की जरूरत थी क्या? नहीं। देखो लॉजिक समझो, नहीं सर। अगर यहाँ पर पहले से जमीन है, अगर जमीन पे टच है, तो मेरे को ये केबल लगाने की जरूरत थी क्या? नहीं सर। नहीं नहीं। थी। नहीं सर। केबल लगाया मतलब उसका सपोर्ट उसने हटा चुका है वहां से, तुमको दिख रहा है बट है नहीं। इट इज जस्ट टचिंग। फ्रिक्शन में हम बोलते हैं ना जस्ट मूविंग, तो वैसे यहाँ पर भी है, इट Yes, इज sir. जस्ट टचिंग, मतलब टच नहीं है बट ऑन द वर्ज ऑफ टचिंग है। सो दैट्स व्हाई द रिएक्शन एट बी विल नॉट कम। बट वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत से लोग बना देते हैं उधर। हाँ चलो, सो एंगल कौन सा अपना एंगल पे है? 30 डिग्री के एंगल 30 डिग्री। तो क्या करूँ, लिख दूं TBC cos 30, TBC sin 30? नहीं बोलो सर। हाँ। सर नहीं सर, हाँ, क्यों नहीं? हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अगेन लेंगे। अगेन लॉजिकल, दिस 30 एंगल इज बिटवीन दिस टू। हमको क्या चाहिए? विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y। या तो x से बताओ भाई, या तो y से बताओ, बीच का मत बताओ भाई हमको। ठीक है, x से भी 30 आ रहे हैं। कैसे 30 आएगा? अब मैं तुमको जादू बताता हूँ, ठीक है? इन दिस ट्राइंगल, जस्ट ऑब्जर्व ऑन द राइट हैंड साइड, इन दिस ट्राइंगल दिस इज 60, दिस इज 90, तो ये कितना होगा? 30। 30 होगा। 30 किसका एंगल है? 30 किसका एंगल है? ये बार का। अपने को एंगल किसका चाहिए? ये टेंशन का। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60. So exact angle is 60 degrees. So now I make here that this is TBC cos 60 and this is TBC sin 60. सब किसी को डाउट? सर फिर से बताओ ना, नेटवर्क गया था। ठीक है, फिर से बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम में लोग वो 30 देख के खुश हो जाते हैं कि सर एंगल दे दिया था मस्त 30, एक नंबर समता सर, कुछ करना ही नहीं था, एंगल सब दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा तुम्हारे साथ। ये एंगल जो 30 है, दिस एंगल इज बिटवीन दिस टू थ्रेड और ये बार के बीच का एंगल है। हमको बीच के एंगल की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए भाई? एंगल या तो x से बताओ या तो y से बताओ, बीच का मत बताओ। ओके, सो फॉर दैट आई विल यूज द ज्योमेट्री फ्रॉम हियर। इन दिस ट्राइंगल विच इज डाउन, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में से ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 30 होगा, बराबर। नाउ दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 30 और ये एंगल हमको ऑलरेडी 30 दिया है। सो टोटल एंगल ऑफ दिस थ्रेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना हो गया? 60 डिग्रीज। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन TBC cos 60 एंड TBC sin 60। अभी कुछ डाउट? नो सर। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इक्वेशन राइटिंग। समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0। देखो बहुत मजा आएगा इसमें। fx इक्वल टू 0, एड ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन। सो व्हाट इट विल बी? HA माइनस TBC cos 60। और कुछ आएगा? नो सर। नहीं, तो इक्वल टू 0, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली सेकंड इक्वेशन, समेशन ऑफ fy शुड बी 0, एड ऑल द फोर्सेस बाय डायरेक्शन। तो y में कौन से -3। जस्ट अ मिनट, तोहा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मेरा म्यूट है समेशन, सर। हाँ किसी का तो आवाज आ रहा था। समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0, तो fy में क्या क्या आएगा? va माइनस 3 और क्या आएगा? प्लस TBC sin 60 इक्वल टू 0। और कुछ आएगा क्या? नमस्कार। नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हारे को मैं क्वेश्चन पूछूंगा और देखता हूं तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। ओके, लेट अस राइट समेशन ऑफ मूवमेंट। कौन से पॉइंट पे लेंगे मूवमेंट? ए पे। बी पे। ए पे ले लो, बिकॉज देयर आर टू फोर्सेस। ए पे भी ले सकते हैं। बी पे भी ले सकते, गुड, क्योंकि बी पे भी अगर लूंगा तो मेरा ये TBC और TBC दोनों फोर्सेस 0 हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, so you can take either on point A or on point B।
सर लेकिन टेंशन भी तो निकालने का है ना, बी पे नहीं ले सकते ना। क्यों नहीं ले सकते? देखो लॉजिकली क्या होगा, निकालने का तो। सुनो ना, टी बी पे अगर मैं मोमेंट ले लूंगा तो टी बी सी हट जाएगा बराबर, यस तो मुझे एच ए और वी ए का आंसर मिलेगा ना। तो एच ए और वी ए को मैं 1 और 2 हाँ। करके आंसर निकाल सकता हूँ। सर रिपीट करो, आवाज बता। देखो तुमने क्या बोले, टी बी सी निकालना है, इसलिए हम बी पे नहीं ले सकते बराबर, यही बोले ना कि टी बी सी का आंसर निकालना है, इसलिए Yes, sir. मोमेंट एट बी नहीं लेना है। बट मैं बोल रहा हूँ अगर मैं मोमेंट एट बी ले भी लिया तो क्या होगा, टी बी सी 0 हो जाएगा मोमेंट, तो वहां से मुझे क्या दोनों 0 हो जाएंगे। एच ए और वी ए का आंसर मिल जाएगा ना। बट और वो एच ए और वी ए का आंसर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 में निकाल सकता हूँ। हाँ सर फिर सही है। तो कोई भी देखो एट एनी पॉइंट विल वर्क, कोई भी पॉइंट पे आप ले सकते हो, आपके ऊपर। सो लेट अस गो बाय मोमेंट एट ए इक्वल टू 0। सर किसी का तो माइक ऑन है। हाँ बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज जिसका भी माइक ऑन है ऑन ऑफ कर दो। हाँ, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू 0। मूवमेंट एट ए लेना है, दिमाग से मूवमेंट एट ए लेना है। सो व्हाट विल बी मूवमेंट ऑफ एच ए एंड वी ए? 0 होगा। 0 बराबर। चलो वो तो बच्चा ही बोल देगा। नाउ दिस फोर्स इज मेकिंग अ clockwise movement, so it will be -3। I want distance now। देखता हूँ तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। 3 cos ट्रायंगल बनेगा। No. बोलो 3, बोलो 3, बोलो 3। एंगल बनेगा। हाँ, 3 घाई cos गए हुए, 60। हाँ घाई गए हुए, घाई